Vasanji to dance. Please come, sir. Welcome, our pleasure, sir. And again, I invite Ashish Tapiawala for brief introduction about Chief Guest. Just see you if it is working. Dear friends, brief introduction for such a huge person is not possible, but I will try to give as brief as possible. It is at like 10 o'clock on Saturday night. A group of friends are seated at a table in Aiba, a small pub in Bandra. More than their drinks, they are interested in a little piece of paper. It is nothing but it is a drinking permit. Why not? After all, ACP Vasant Doble is on duty. Either have a proper permit to drink or be ready to run when you listen the scream, Bhago Doble Aaya. Yes, dear friend, that was the situation in and around western suburb for illegal pubs or bars or illegal drinkers. Very popularly known as hockey stick police or hockey stick cop. He joined the police on July 1st, 1976 as a sub-inspector, and controversies began dogging him soon after. He had studied to become a lawyer. When he decided to give his MPSC exams a shot along with the friends, he cleared the exam and left the course halfway to join the force as a sub-inspector. 6 feet tall, well-built, ever smiling and composed, but some love and some hate him. He is a police constable officer, ACP Vasant Doble. He became a known personality for his style and functioning as the ACP of the Social Services branch. He was criticized by some acting as an extra constitutional authority or acting as the moral police. He was the head of Mumbai Police Social Service branch and has been in the news of late due to his frequent raids on the city's bar and pubs. In spite of ban on bar dancers, many illegal activities were carried out in the bars. Vasant Doble earned notoriety by raiding pubs and neighboring nightclubs and slapping outdated laws against them, and earned the title of an anti-nightlife crusader. Vasant Doble was the officer who dared to eradicate all unwanted elements from Mumbai. He is an honest and straightforward cop of the Mumbai police, who is known for his strong action against the prostitution rackets and drug peddlers in the city. The cop has his admirers amongst the ordinary Mumbaikars whose life is included into by organized mafia. But his action against the prostitution has made him a victim of malicious campaign on TV channels like NDTV, CNN, IBN, most likely to be sponsored by these mafias. Mumbai police needs such officers, but politics and political interference has ruined the system. He was pressurized by politicians and page 3 people whose survival was bar, dope and drugs. He also had hit the headlines for transfer to various departments of police, Mumbai police. Such an acting officer was transferred to control room of late, and then he was brought to the crime branch. Assistant Commissioner of Police has been accused by his severest critics of trying to Talibanize Mumbai, usually armed, often with the camera, at least once with a hockey stick. Mr. Doble arrives to enforce what many in the city believe are archaic laws. In the word of Mumbai Police Commissioner Arun Patnaik, who is a big admirer of Vasant Doble ji, seems to be much misunderstood, much malignant police officer.
A reason to be valiant in news channel was who questioned the integrity of all those who questioned corruption, black money and scams. The truth is he means well. He believes that the police must not sit around but must act, render service to people. He is a strong, clean man. He has set an example to the police force in Mumbai and shown that the police must take bold initiative to stop all unlawful activities and see that people get a chance to breathe freely. He was posted as a ACP at Vakola division where he was in charge of just 2 police stations. But you cannot keep a man like Dobre down. You can transfer him to Vakola, Thane or even banish him to Siberia, but he will get going. After 39 years of service, ACP Vasant Dobre set his hockey stick aside and hanged his uniform to say goodbye to police department on 31st May and is planning to spend his remaining life in the village after retirement. He is living his life with wife and son Kshitij, who has completed his PhD from University of New Zealand. I think he just returned 2 months back after completing his PhD, and he wanted to start his business, and he wanted his father to join him. Now it is up to sir whether he goes for the farming or he is joined with his son. We wish him all the best for whatever he does in his second innings. However, like me, many Mumbaikars would definitely miss him. So I present to you retired ACP Dobre. मुंबईचं ट्रॅफिक आणि ते पोलीस काही करू शकत नाही, वाईट परिस्थिती आहे. ओके, ठीक आहे. आज तुम्ही या ठिकाणी मला बोलवून जो सत्कार करत आहात त्याच्याबद्दल मी तुमचा आभारी आहे. Dear friends, हम लोग यहाँ बार बार अपनी इंडियन संस्कृति, कल्चर, ये सब बातें करते रहते हैं, मगर इस कल्चर को संभाल के रखने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है यह हमें नहीं मालूम. हम हमेशा दूसरों की तरफ उंगलियां बताते हैं, ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, समाज कहाँ जा रहा है. मराठी में अभी वो इलेक्शन के टाइम था, कहा कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र वाला, कुठे नेऊन कोणी ठेवला, कोणी ठेवला. जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, रियली वो लोग उसके लिए सीरियस है या नहीं है, क्या बता रहे. ब्यूरोक्रेसी ने ये करना चाहिए, पॉलिटिशियंस ने वो करना चाहिए, सब दूसरों ने करना चाहिए, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं. वी आर नो वेल कंसर्न अबाउट मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनिंग आवर कल्चर, नथिंग. करते क्या है हम लोग, खाली क्रिटिसिज्म एंड नथिंग. खुद करने का अगर मौका मिला तो भी नहीं करते हैं, जिम्मेदारी अगर सौंप दी तो भी नहीं करते हैं, करने का कुछ नहीं.
but I have seen so many NGOs. I have come across so many NGOs, those who are really working hard, keeping a vigilance on the society, neglected people like children and women, and doing their job perfectly right to rescue them. बातें तो हम करते रहते हैं कि यहाँ हमारे आजू बाजू में सोसाइटियों में वो सब डांस बार, गैम्बलिंग डेंस और ये प्रोस्टिट्यूशन डेंस एंड और कितनी इलीगल एक्टिविटी चलती रहती है, जिसमें वो कभी नया नया कुछ आए, हुक्का बार, हुक्का पार्लर, क्या होता है ये सब जगहों पे? Exploitation of children, exploitation of women, especially minors. सोशल सर्विस ब्रांच में जब हमारी पोस्टिंग हुई थी, तभी के कमिश्नर पुलिस मिस्टर पटनायक, इन्होंने हमें बुलाया था नहीं, हम खुद गए थे उनके पास कि सर हमारी ट्रांसफर कल हुई है विधान भवन सुरक्षा, और हम आज, क्योंकि विधान भवन सुरक्षा वो बॉम्बे पुलिस के अंडर नहीं है, वो महाराष्ट्र पुलिस के अंदर है, तो हम आज बॉम्बे पुलिस को छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने बताया वहाँ तुम्हारा क्या काम है, चोर लोग की रखवाली करनी है क्या? अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो हम वो ट्रांसफर कैंसिल करवाते हैं और आपको कोई नई जिम्मेदारी देते हैं। आई एग्री अपॉन, नो इशू। Then he wrote to the government for cancellation of transfer, which took 6 months, but he didn't review me. I had taken over charge of social service branch, and on the first day he told me, taking legal action against any illegal thing, I have no problem. It's okay. Then I observed what illegal things are going on in the society, and then decided to study it minutely, and then I have seen or followed the laws for taking action against these all illegal activities. कानून तो बन जाते हैं, पालन कोई नहीं करता। उसमें जो पतली गलियां हैं वो ढूंढते रहते हैं, चलते रहता है। The agencies, those who have been deputed for that, are supposed to implement these laws, rules and regulations, are keeping their eyes closed, and everything is going on smoothly with the knowledge of these all agencies and the common people. Nobody is there to take any objection if somebody tries to do it, so he will be looked after by money power, muscle power, and then the person gets frustrated and tries to go away or try to avoid looking after these all things. Dear friends, आपने ये सब न्यूज़ में या टीवी चैनल्स पे वो सब देखा होगा कि नाइट लाइफ चालू रखने के लिए कितनी पॉलिटिकल पार्टीज और कितने सारे लोग उसमें लगे पड़े। क्या होता है नाइट लाइफ? मेरा ऐसा कहना है
या ऐसा मेरी ऐसी समझ है कि जितनी भी धंधे रात में चलते हैं उसमें कुछ ना कुछ कलर काला ही होता है। सीधा काम तो होता नहीं। कुछ भी इस्टेब्लिशमेंट लो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो बियर बार हो, चाहे जितने भी इलीगल एक्टिविटीज के अड्डे हो, और कौन जाता है वहां? कहां से पैसे आते हैं? सारे अपना हार्ड अर्न मनी वेस्ट करने के लिए नहीं होते हैं, और उड़ाते भी हैं पैसे, तो वो सफेद पैसे कभी नहीं हो सकते। क्या होता है वो बारों में? बारिश गिरती है नोटों की। क्या होता है? जो अड्डे पे पैसे फेंकते हैं और वो पैसे बिखरे नहीं, इसके लिए उनके बंडल बांधे जाते हैं। मेरे 2 लाख, मेरे 5 लाख, मेरे 10 लाख, ऐसे बंडल गिरते हैं, नोट्स नहीं। हुक्का पार्लर्स, क्या होता है हुक्का पार्लरों में? डे नाइट चलते हैं। आई हैव raided these hookah parlors early in the morning and I have caught the girls studying in the 7-8 standards. घर से 7 बजे की स्कूल अटेंड करने के लिए निकलते हैं। अपने स्कूल बैग में, दफ्तर में एक शर्ट एक्स्ट्रा डाल देते हैं। घर से बाहर निकलने के बाद में उस पे ऊपर यूनिफॉर्म पे शर्ट पहनते हैं। बाहर जो वेट करते हैं वो होते हैं बच्चे, आजू बाजू में रहने वाले एडल्ट्स, मतलब बड़े 18, 19, 20 साल के बच्चे लड़कियों को फुसलाते हैं। वो हुक्का पार्लर में चलो, उधर ऐसा होता है, वैसा होता है, और वाटरमेलन फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर, हमका डमका हुक्का, मजा आता है, ले जाते हैं। एंड हुक्का पार्लर के अंदर एक टिमटिमाती हुई लाइट चलती रहती है, इसको नाइट लैम्प जैसा लगा देता है, पूरा अंधेरा होता है। एंड दीज गर्ल्स आर बीइंग मॉलेस्टेड देयर। किसके बच्चे रहते हैं? किसकी लड़कियां हैं? हमारी, हमारे बच्चे हैं। तो फिर उनकी हिफाजत करने का काम किसका है? उन लोगों का जो उनको पहला फुसला के ले जाते हैं हुक्का पार्लर में, या जो हुक्का पार्लर चलाते हैं, या फिर the common citizens, those who are concerned about it. Nobody matters. The agency, those who are supposed to take action and ensure the safety of these children, are keeping blind eyes and having a hand in gloves with these people. Everything goes smoothly. बारों में जाइए, रात को जो पैसे उड़ाते हैं कौन होते हैं वहां? ज्यादातर करके ब्यूरोक्रेट्स मिलते हैं आपको, जो हराम की कमाई कमा के शाम को उड़ाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। या कोई बिजनेसमैन है जो काला काम करते हैं, काला धंधा करते हैं, पैसे कमाते हैं, शाम को जाके बाहर में उड़ाते हैं। एज बार कुछ नहीं होता। 60, 70, 80 साल के जवान भी वहां बैठे हुए दिखाई देते हैं, पैसे उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। किसके पैसे हों? भले वो काला कमाई है, किसका अधिकार है उन पैसों पे? उनके फैमिली मेंबर्स का है या बार मेंबर्स का है? कुछ मतलब। रोज शाम को काम खत्म करने के बाद में बारों में जाने का है, पैसा उड़ाने का है। रात को 12, 1, 2 बजे, 12, 1:30 बजे बंद होने के बाद में घर पे पहुंचना का है। घर वालों को बताने का है कि हम आज बहुत काम था, बहुत सारा काम था, ऑफिस थक गया था, सो जाता हूँ।
एंड होशियारी करते हैं सैटरडे संडे। घर वालों को बोलते हैं आज हम आपको होटल में ले जाएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे, जो आपकी पसंद का है वो खिलाएंगे, ले जाते हैं। घर वाले भी खुश, बहुत अच्छा है हमारा पिताजी, मेरे हस्बैंड तो इतने अच्छा है, हमें हर सैटरडे संडे होटल में लेके जाते हैं, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। होटल पे ऐसा चुनते हैं जहाँ फैमिली रेस्टोरेंट होता है, सब कुछ मिलता है। फिर तो भाई साहब कुछ हॉट ड्रिंक्स, बच्चे के लिए बियर और बच्चों के लिए पिना कोलाडा, बच्चा देखते रहते हैं क्या है ये। वो अगर मांग लेते हैं जो पिताजी पी रहे हैं तो हमें देते नहीं है। फिर पिना कोलाडा क्या होता है वो मालूम नहीं। उनकी आत्मा उस पर काम करना चालू कर देती है कि इसकी मजा तो हमें भी लेनी चाहिए, इसमें कुछ तो होगा। और फिर अपने दोस्तों के साथ ट्रिप मनाने चले जाते हैं और वहाँ ये सब कारोबार करते हैं। 2 साल पहले पुणे में एक रिसोर्ट में रेड किया गया था जहाँ 8वीं में पढ़ने वाले 400 बच्चे बियर पीते हुए पकड़े गए थे एट द टाइम, 400 चिल्ड्रन। अभी 8वीं में अगर वो बियर का टेस्ट ले रहे हैं तो जिंदगी आगे क्या होगी मालूम नहीं। एडिक्शन, कोई भी चीज का एडिक्शन हो जाता है। किसको पढ़ने का एडिक्शन होता है, किसको एक्सरसाइज का एडिक्शन होता है, योगा का एडिक्शन होता है। अंदर ये सारी जो नशीली चीजें हैं उसका एडिक्शन हो सकता है। एक बार एडिक्ट हो गया, बाहर आना बहुत मुश्किल। हमने बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स विजिट किए हैं जहां बच्चों को 6-6 महीना एडमिट करने के बाद भी जो दिन डिस्चार्ज दिया जाता है, पहले वो अड्डों पे चले जाते हैं, फिर घर पे, जिंदगी बर्बाद। घर में चोरियां करना चालू कर देते हैं, वैल्यूएबल्स खत्म हुए तो आजू बाजू में हाथ मारना चालू कर देते हैं। और बाद में फिर तो रास्ते पे खड़ी हुई गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स वो भी उठा के लेके जाते हैं, बेचते हैं, नशा पानी करते हैं और कुछ। इस पे दूसरा भी एक एंगल है। हम जिसको टेररिज्म समझते हैं, वो टेररिज्म, आतंकवाद, वो खाली कोई एक जगह पे बॉम्ब स्फोट या धमाका करके 4-10 आदमी लोग का डेथ ऑकर करके उतने पे वो आतंकवाद नहीं रुकता है। काउंटरफिट करेंसी, जाली नोट्स सर्कुलेट करके, मतलब उसका प्रिंटिंग करके सर्कुलेट करके इस देश की अर्थव्यवस्था को सेक करने का वो भी एक आतंकवाद ही है। ड्रग्स का सर्कुलेशन करके यंगस्टर्स, इंटेलेक्चुअल क्लास, उनको उसका आदी बनाना, ये भी आतंकवादी है, क्योंकि इससे अपनी करेंसी बाहर चली जाती है। दूसरा इंटेलेक्चुअल क्लास है जो खलास हो जाता है। इस देश की नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है। कौन ध्यान देगा उनके ऊपर? किसके बच्चे हैं वो? हमारी बच्चे हो सकते हैं, हमारी बिटिया हो सकती है। हो सकता है कि ये ऐसी आदत जिसको लगी है, ऐसी किसी और की बेटी भी हमारे घर में बहू बन के आ सकती है। Then who is responsible for this?
शादी के बाद उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगते हैं, झगड़े चालू हो जाते हैं। आज भी बॉम्बे का जो फैमिली कोर्ट है उसमें चले जाते हैं तो मोर देन 13,000 केसेस आर पेंडिंग फॉर डिवोर्स। क्या है? क्योंकि उनको रिस्ट्रिक्शन पसंद नहीं है। हमारे ससुराल वाले तो ऐसे ऑर्थोडॉक्स है कि घर से बाहर जाने को तैयार नहीं है, क्लबों में तो साल में एक बार भी नहीं ले जाते हैं। ऐसा कैसा ससुराल नहीं चलेगा। इस संस्कृति यही खराब हो रही है। कौन लेगा इसको सुधारने का जिम्मा? We'll take care of this one. Dear friends, सोशल सर्विस ब्रांच में ये सब रेड हमने कंडक्ट करना चालू कर दिए हैं। तब एक 1.25 साल में मोर देन 550 रेड्स हमने क्रिएट किए। उसमें देखा गया कि इस शहर में पढ़ने के लिए आई हुई लड़कियां पब्स में, डिस्कोथेक में पाई जाती है। रात को 1:30-2 बजे पब बंद होने के बाद में उनको चलने का होश नहीं होता, सैडल हाथ में लेके बाहर निकलते हैं। माँ बाप सोचते रहते होंगे कि हमारी लड़की बम्बई में इंजीनियरिंग कॉलेज में या आर्किटेक्ट कॉलेज में पढ़ रही है। दोष किसको देने का है? जो उनको बिगाड़ रहे हैं उनको देने का है? जो ये इलीगल एक्टिविटीज करके पैसा कमा रहे हैं उनको देने का है? या फिर अपने माँ बाप जिनका अपने बच्चों पे ध्यान नहीं है उन पर देने का है? कहाँ ध्यान रखेंगे हम बच्चे लोग? सुबह उठने के साथ में स्कूल भेजना है, स्कूल से आने के बाद में फिर क्लास, ट्यूशन क्लास भेजना है, बाद में शाम को स्पोर्ट्स के लिए भेजना है, ये है वो है वो है, उसको रेस के घोड़े के जैसा दौड़ाने का है, मार्क्स पाने हैं, उसको इंजीनियर करना है, डॉक्टर्स करना है, क्या 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 सोचते रहते हैं। मगर बच्चा घर के बाहर जाने के बाद वो किसके कंपनी में, कौन से फ्रेंड्स लोग के साथ में रहता है, क्या करता है, घर पे आने के बाद में उसके बिहेवियर में कुछ फर्क नजर आ रहा है या नहीं, वो ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। नहीं तो एक बार हाथ से बच्चा चला जाने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारा क्या काम है? हमें तो खुद को बचाना है, सेफ्टी फर्स्ट। खुद को बचाते बचाते हमें ये भी देखना है कि ये सब चीजें हमारी अगर नजर में आती हैं, हम अगर कुछ सुनते हैं हमारे बच्चे के बारे में, बाजू वाले के बच्चे के बारे में, हमारे सोसाइटी में अगर कोई बच्चा है तो उनके बारे में अगर कुछ भी दिखाई देता है या सुनाई देता है तो उसके पेरेंट्स की नजर में ये बात लाना, उनको बताना बहुत जरूरी है। नहीं वो कर सकते हैं शर्म के मारे तो आप नजदीक का पुलिस स्टेशन में जाके भी इसका इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि वो बच्चे की जिंदगी बच जाए। हर एक को कहने पुलिस ने ऐसा करना चाहिए, पुलिस ने वैसा करना चाहिए, या कोई दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी है उसने ऐसा करना चाहिए, सब चाहिए। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। हर एक इंसान पुलिस होता है। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इज अ पुलिसमैन। द डिफरेंस इज ओनली ही डोंट हैव द पावर ऑफ अरेस्ट। कर भी सकते हैं मगर खुद का सेफ्टी ध्यान में रखते हैं, करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो वो अपना फर्ज निभाने में नाकामयाब हो रहे हैं, ऐसा महसूस।
सोशल सर्विस ब्रांच में काम करते हुए ये सारे अड्डा पे जब रेड किया तो आई वॉज एबल टू रेस्क्यू मोर देन 1300 गर्ल्स। आई रेस्क्यू मोर देन 400 चिल्ड्रन। तो बच्चे लोग को इधर उधर क्या करवाते हैं बच्चे लोग से? भीख मंगवाते हैं, उनको चाइल्ड लेबर करके रखते हैं, उनको ड्रग ट्रैफिकिंग में यूज करते हैं, उनको मॉलेस्टेशन के लिए भी यूज करते हैं। बचाना चाहिए इनको। एट द प्रॉपर एज, एट द प्रॉपर स्टेज, it is our moral responsibility to rescue the children, those who are adopting the wrong path. करना चाहिए। खाली पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ के नहीं चलेगा। अब हर एक कॉमन सिटीजन की अपेक्षा रहती है कि जिनके जो लोग वो दंगा मस्ती करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, उनको मारना चाहिए, तोड़ना चाहिए, पुलिस ने उनके ऊपर केसेस करने चाहिए, ऐसी अपेक्षा रहती है कॉमन सिटीजन की। हमने भी वैसी कोशिश की, लेकिन ये सब करते करते हमारे ऊपर 118 केसेस दर्ज हुए। आप में से अगर किसी के ऊपर एक आध केस दर्ज हुआ होगा या अगर कुछ मालूम होगा तो उससे क्या तकलीफ होती है उसको आपको जानकारी होगी। 118 केसेस फेस करते करते मेरे सर पे से बाल उड़ गए। I was suspended for 3 times. I was convicted in 1 case and sent to the jail. ये सारे केस खत्म करने के लिए 30 साल का टाइम गया, वक्त लगा। और जब सारे केस पूरे किए, गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन लिखा कि मेरे सारे केस अभी खत्म हुए हैं, मुझे अगला प्रमोशन दे दो। तो गवर्नमेंट ने मुझे लिखा कि भेज दिया कि आपको 10 साल पहले जो प्रमोशन दिया था वही गलत था, वो भी आपका निकाल दिया जाता है। I was dismissed. बहुत खराब। और ये सब करने के बाद भी हिम्मत नहीं हारना है, छोड़ना है, सबको ये करना है। आप भी कर सकते हैं। किसी की जिंदगी बचाने में, किसी का बच्चा सही रास्ते पे लाने में आपको जो आनंद मिल सकता है उसका वैल्यू हम पेटियों में या खोखों में नहीं गिन सकते। पैसा क्या होगा? सोच, इधर लास्ट पोस्टिंग में हमारे जो कलीग्स थे हमें बताया कि साहब, अरे वसंत राव, ये जिंदगी भर तो सर्विस ऐसी कर दी, अभी तो कमिश्नर ने तेरे हाथ में गोदाम की चाबी दी है, दुकान खोल दे, बढ़ जा। लालच में आ गए हम भी। चलो, अच्छा तो मौका मिला है, अभी जाते जाते कर लो सफाई। दुकान की चाबी खोली, वो दुकान नहीं गोडाउन था, और उस गोडाउन में हमारा जमीर भरा हुआ था पूरा खचाखच। अगर हम हमारे जमीर का सौदा कर देते थे तो वेयर हाउस भी प्रॉपर्टी रखने के लिए कम पड़ जाते थे। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बचपन हमने भूखा पैसा प्याज उबाल के खाए हुए दिन निकाले हैं। हमें ये सब प्रलोभन कुछ हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें रास्ते पे नहीं चलना है। आज भी हम देखते हैं कि लालच में आके जितने सीनियर सिटीजन रिटायरमेंट के बाद में या ढलती उम्र के साथ में जमा की हुई पूंजी अलग अलग स्कीम्स में डाल देते हैं कि अभी जो पैसा हाथ में आया ये स्कीम में लगाओ, वो स्कीम में लगाओ, आपको 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में डबल हो जाएगा। सुने ना सिटी लिमोजिन 3000 करोड़ का करना,
अभी वो नेशनल क्या वो अभी वो जिग्नेश शाह और ये सब क्या MCX 5,000 करोड़ का घपला लगा के जिन्होंने पैसे लगाए होंगे सारे डूब गए। लालच, क्या फायदा है इस सब का? कुछ नहीं होता है। ये डबल लेवल पैसा कभी नहीं होता है। हमें समझना चाहिए कि किस में हम पैसा लगा रहे हैं। हमारा हार्ड मनी अगर जिसमें लगा रहे हैं वो सही है नहीं है, हमें पहले से पता करना चाहिए तो ही उसमें डाल देना चाहिए, नहीं तो लास्ट में ये सब हाथ में से चला जाएगा और हमारे सामने आंखों के सामने वो पैसा और कोई एंजॉय कर रहा है, दिल अंदर से जल उठेगा, नहीं चाहिए उसे। दोस्तों, अभी एज एन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें क्या करना है? हमें अपनी आंखें कान खुले रखने हैं, खुद की सेफ्टी रखनी है। एडिक्शन हमें भी लगवाने हैं, लेकिन वो है कुछ भी योगा या कोई एक्सरसाइज या किसी को जिंदगी देने वाला काम जो कर सकते हैं उसका एडिक्शन लगाने का है। उसमें बहुत मजा है। लास्ट ईयर जब ये वाकोला में थे तभी उधर कुछ एलिगेशन हुआ। हम ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस से निकलने के बाद में ऑफिस के बाहर वॉचर्स लगाते थे। ऑफिस से निकला, लेफ्ट गया तो वाकोला गया, राइट गया तो पार्ला गया। पार्ला बंद हो जाता है, लेफ्ट गया तो वाकोला बंद हो जाता है। और सब भाग दौड़ में एक फेरिया क्या बोलते हैं, हॉकर्स का डेथ हो गया, जो मेरे ऑफिस से 4 किलोमीटर दूर। एंड देन सब पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लीडर्स, MPs वो सारे आके हंगामा कर दिए, रास्ता रोको कर दिए, केस रजिस्टर करने पे इंसिस्ट करते रहे। इसके ऊपर केस रजिस्टर करो, इसको इमीडिएट अरेस्ट करो। पुलिस कमिश्नर के ऊपर प्रेशर, चीफ मिनिस्टर के ऊपर प्रेशर, ये ACP का ट्रांसफर या कुछ करने के लिए CM तक को बीच में आना पड़ता है, तो कितना प्रेशर माउंट होता होगा। ये सारे जो लोग हैं वो कितने ताकतवर हैं, आपको उनका अंदाजा नहीं होगा, कुछ भी करा सकते हैं। और फाइनली मंडोली उसमें हुई कि इनके खिलाफ में हम इंक्वायरी चालू कर देते हैं, CID की इंक्वायरी लगा देते हैं, इमीडिएट ट्रांसफर करवा देते हैं। और फिर ट्रांसफर करवा दिया कंट्रोल रूम, और गाड़ी निकलवा दी, गवर्नमेंट की गाड़ी निकलवा, पगार बंद किया 1 साल तक। एक दिन कमिश्नर साहब मिले, जो स्टेयरकेस में हम ऊपर चढ़ रहे थे ऑफिस जाने के लिए और नीचे उतर रहे थे। क्या मिस्टर बोले, क्या चल रहा है? बोला सर कुछ नहीं, आराम हो रहा है एकदम। क्या करोगे? बोला जो आप बोलेंगे करेंगे। अरे वो तो आप करेंगे ही, आप क्या करना चाहते हैं? मैं बोला सर हमें वो मिसिंग पर्सन ब्यूरो जो है उसमें डाल दो। क्यों? अभी उधर भी क्रांति करनी है क्या? मिसिंग पर्सन ब्यूरो जो गुमशुदा लोगों को ढूंढने का काम करता है ब्यूरो, उसमें क्या क्रांति होगी? ठीक है सर, डाल दो। फरवरी 13 में हमें उसमें डाल दिया, 1-2 महीना रखा, फिर वो इकोनॉमिक ऑफिसर्स में एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया, काम बंद। Then when I was posted in that missing person bureau, I called all the information from all the police stations and realized that more than 17,000 people are missing from Mumbai itself. सबका डेटा जमा किया, तब तक कमिश्नर भी बदले हो गए, नए कमिश्नर आए मिस्टर मारिया, उनको बता दिए कि साहब ये हालत बहुत गंभीर है,
17,000 लोग बम्बई से मिसिंग है और सुप्रीम कोर्ट तो एकदम हेवीली आ रहा है। एक दिन हमें भी कोर्ट में बुला सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। He was so kind. बोला डोबले आप बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग। बोला सर हर एक पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर और 2 आदमी तैनात कर दीजिए जिनको और कुछ काम करना नहीं है, सिर्फ मिसिंग लोग को ढूंढवाना है। And then he was kind enough to accept that proposal. Accordingly, orders were issued to deputy commanding officer and to corresponding from each police station for this particular job. A special drive was arranged on 5th of November. And you will not believe, on the day of my retirement, that is 31st of May 2015, we could trace more than 7,000 missing people. मगर हम फिर भी खुश नहीं है। खुश इसके लिए नहीं है 4 months. In 4 months. 6 months, नवंबर दिसंबर, फिर भी खुश नहीं। I am not happy because my mission I couldn't take it to the logical end. आज भी 10,000 लोग को ढूंढने का काम बाकी है और हम वो करना चाहते हैं। अतः आप सबको हमारी विनती है, अच्छा ही काम करने के लिए सब रोटरियंस और सारे क्लब्स काम करते हैं। आप अपना एरिया में कोई भी इस्टेब्लिशमेंट में अगर कोई छोटा बच्चा काम करता हुआ नजर आया तो आप उसकी इंफॉर्मेशन सोशल सर्विस ब्रांच में एक छोटा सा यूनिट है जिसका नाम जापो है, जुवेनाइल पुलिस एड यूनिट। 100 नंबर पे भी दे सकते हैं, नजदीक का पुलिस स्टेशन में भी उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमारे एरिया में जो राम भरोसे हिंदू होटल है उसमें 2 बच्चे छोटे छोटे माइनर काम कर रहे हैं। हम जिस एरिया में रहते हैं या जिस एरिया में काम करते हैं उस एरिया में अगर कोई भी बच्चा भीख मांगता हुआ नजर आया तो उसकी भी इंफॉर्मेशन पुलिस में दे सकते हैं and they are bound to take action immediately. Sorry. टाइम हो गया आपका? सर कंटिन्यू करिए। क्लोज कर देते हैं। 5 minutes, okay. दूसरा, आपके एरिया में अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी चलते हैं उसका भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके लिए आपको नाम आपका डिस्क्लोज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कर सकते। So this will be your contribution towards the safety of our society. हम इकट्ठा आके कोई चंदा जमा करके कोई एक विधायक काम करके है ना, ये क्या वो क्या वो क्या, उससे अच्छा तो वो होगा कि हम किसी की जिंदगी बचाने के लिए कुछ काम में आए। हमारे पूरे लाइफ में भी एक आदमी की भी जिंदगी हम अगर बचा सकते हैं तो हमने स्वर्ग पा लिया। क्या चाहिए? तो मैं Dear brothers and sisters, I hope आपको हमारी इस रिक्वेस्ट को फॉलो करने के लिए कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा। अगर मिलेगा तो आप ये ध्यान में रख के चलिए कि हमें एक आदमी की जिंदगी बचानी है। Thankful to the Rotary Club of Borelli for calling me and felicitating and just giving the
opportunity to talk to you. Thanks a lot. Probably deserve a applause and a standing ovation. Thank you, sir. You are all right. Sir, I would request you the secret behind the hockey stick. Very nice. बचपन में हम जब गांव में पढ़ते थे, छोटे छोटे बच्चे, सैटरडे संडे को हमें जानवरों को चराने लेके जाने का काम मिला। माँ हाथ में एक काठी देते थे, चलो जाओ। आज दिन भर काम यह है कि जानवरों को चरा के लाना। काठी तो छूट गई जब कॉलेज में चले गए, लेकिन पुलिस में आई तो वापस वो काठी आ गई। स्कूल में पढ़ते थे कि जो काम सीधी उंगली से क्या, हाँ सीधी उंगली से नहीं होता है तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है, ये नहीं करना है। हमने सोचा कि ये काठी सीधी काठी काम नहीं करती है, और फिर दोस्त ने क्या दवा किया, आप सारे लोग ने देखा। सर, दूसरा एक क्वेश्चन था हमारे वहाँ से कि मोहल्ला कमेटी के बारे में रिवाइव हो सकता है क्या? मोहल्ला कमेटी, तो अवर सर्टेन पीपल आर इंटरेस्टेड, मोहल्ला कमेटी के बारे में एक 2 मिनट आप बता सकते हैं? पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत सारी स्कीम्स चालू रहती हैं, जिसमें वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए वो भी हर कॉलेजों में जाके वो सारे बच्चे लोग को ग्रुप्स बनाते हैं, और एक ग्रुप के लिए एक टीचर को, मृत्युंजय उसका नाम है स्कूल का, एंड वो 10-15 बच्चों लोग के ऊपर एक टीचर को सौंप देते हैं, और ऐसा हर एक कॉलेज में ग्रुप्स बनाते हैं। इन केस ऑफ एनी नेचुरल कैलेमिटी और एनी टेररिस्ट अटैक, वो बच्चे लोग को ग्रुप को काम देते हैं कि ये कॉर्डन करने का काम एक को, वो फायर ब्रिगेड एंड पुलिस की गाड़ी आने के लिए जो रास्ता दिखाने के लिए ग्रुप को, इंजर्ड लोग को हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए एक ग्रुप को, ऐसा अलग अलग ग्रुप्स को काम देके एक स्कीम चलाते हैं। दूसरा, हम देखते हैं कि हमेशा कुछ भी अगर झगड़ा होता है, बच्चों का भी झगड़ा होता है, तो उसका एंड राइट में हो सकता है ना? दंगा, हिंदू मुस्लिम, अभी क्या मुस्लिम क्या हिंदू हमें तो मालूम नहीं। यूनिफॉर्म पहनने के बाद में तो वो जो जैसे पगड़ी पहनने के बाद में सारे सरदार एक ही जैसे दिखते हैं। ऐसा यूनिफॉर्म पहनने के बाद में तो हमको भी सारे इंसान ही नजर आते हैं, वो जात धर्म अहंकार कुछ नहीं। लेकिन ये जातिवाद, आतंकवाद, जितने भी सारे समाजवाद, ये वाद वो वाद, बहुत सारे वाद, वो नहीं हुए। इसके लिए भी वो जो मोहल्ला कमेटी बनाई गई है कि जिसमें जितने भी मेंबर्स होंगे वो अलग अलग धर्म के, अलग जाति के, अलग प्रोफेशन के, वो लोग इकट्ठा लाके अपने एरिया में जिनकी पकड़ है ऐसे लोगों को समझाने के लिए ग्रुप बनाया है, और शायद चालू है अभी भी, और उनकी मीटिंग बुलाते हैं हर हफ्ते 15 दिन में। लेकिन अभी वो ऐसा भी पाया गया है कि इनके पर्सनल जो प्रॉब्लम्स है वो वहाँ खड़े कर देते हैं। आपस में भाईचारा रखने के लिए जो काम करना चाहिए वो बाजू में रह जाता है, दूसरी ही बातें वहाँ होती है। तो शायद कोई कोई पुलिस स्टेशन में वो बंद किया होगा, लेकिन चालू तो है ऐसा लगा, और वो यूजफुल भी है। हमें अपने एरिया में कोई दंगा फसाद, कोई झगड़ा नहीं हुए, उसकी जिम्मेदारी वो मोहल्ला कमेटी की होती है। They are working, they are doing well, I think. Thank you. Okay, sir. Thank you very much. Now,
Now I call upon Sanjay Bhai please to felicitate Vocational Excellence Award to our please Sanjay Bhai, please do the honor and read the citation. I read the citations. Rotary Club of Borivali Vocational Excellence Award presented to Sri Vasant Doble for untiring and unparalleled service to the people of Mumbai in 38 years of glorious career with Mumbai Police. Presented at NCS Club Borivali, 17th July 2015. President Lalit Jadhav, Secretary Rotary Ketan Shah. Rotary Club of Borivali, peak 15 forever on top.